میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم ہے۔ کم از کم اجرت کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایات کی گئی ہے۔ محسن نقوی نے ادائیگیوں پر مفصل رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کم از کم اجرت پر عمل درآمد نہ ہونا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت بتائیے گا، اجرت کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، جس میں صوبائی وزیر احسن تنویر، سیکرٹری لیبر، ایڈیشنل سیکرٹری لیبر، ڈائریکٹر جنرل لیبر اور دیگر متعلقہ حکام جو شریک ہوئے۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کم از کم اجرت کی ادائیگی نہ کرنے والے مالکان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس حوالے سے پنجاب بھر سے اجرت کی ادائیگیوں کے بارے مفصل رپورٹ بھی طلب کر لی ہے کہ کون سی جو ہے پرائیویٹ سیکٹرز اور دوسرے سیکٹر جو ہے اب وہ کم از کم اجرت کے قانون پر عمل نہیں کر رہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ انڈسٹری اور دیگر ادارے کم از کم اجرت ادا کرنے کی ذمہ داری پوری کریں اور کم از کم اجرت پر عمل درآمد نہ ہونا انتہائی افسوسناک۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مزدور اور محنت کش طبقے کو اس کا جو حق ہے وہ دلوانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ اس حوالے سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمام جو متعلقہ سیکٹرز ہیں ان کی رپورٹ مرتب کریں کہ کیا کون کون جو ہے وہ کم از کم اجرت جو حکومت پنجاب نے مقرر کی تھی اس پر عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ جو نہیں کر رہا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے اداروں کو بند کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے قانونی خلاف ورزی کے زمرے میں جو اقدامات ممکن ہے وہ بھی کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔ نواز شریف کی زیر صدارت نولی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس انتخابی امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور۔ بورڈ موزوں امیدواروں کے لیے انٹرویوز کرے گا۔ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ، احسن اقبال، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور دیگر کی شرکت۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اجلاس کی سربراہی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کر رہے تھے۔ اجلاس میں پارٹی صدر شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف سمیت دیگر مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی موجود تھی۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں اب جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنے کے حوالے سے جو ان کا خطاب تھا وہ جو ہے وہ خطاب بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر بعد نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے، جس میں وہ جو ہے وہ 4 نکات پر مشتمل ان کا خطاب ہوگا، جس میں وہ ان کے خلاف جو جھوٹے کیسز لگائے گئے اس پر ایک میرٹ اور باعزت بری ہونے کا معاملہ اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے ریاست کو اور پارٹی کو اور ملک کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف احتساب اور سزا کا مطالبہ، تیسرا ملکی معیشت کے حوالے سے اور چوتھا کہ جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اداروں اور ملک کو اپنے مفادات سے بھی استعمال کیا۔ یہ 4 نکات ہے جس پر انہوں نے اپنا خطاب بھی ریکارڈ کرایا۔ اسی معاملات کو لے کر انہوں نے آج پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں بھی معاملات زیر غور لائے۔ جی ٹھیک ہے، ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ شمالی لاہور کا اکلوتا فلائی اوور داتا نگر پل زبوحالی کا شکار ہے۔ 5 سال بعد ایل ڈی اے کو ایک بار پھر داتا نگر پل کا خیال آ گیا۔ ایل ڈی اے نے داتا نگر فلائی اوور اور ملکہ آبادیوں کے لیے پلان بنا لیا ہے، جبکہ داتا نگر فلائی اوور اور آبادیوں کے لیے 90 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا کیوں زبوحالی کا شکار ہے؟ کیا فنڈز کی کمی ہے؟ اب بنیادی طور پر تو یہ شمالی لاہور کے اکلوتے فلائی اوور داتا نگر فلائی اوور پر حکومتی اداروں کی جانب سے توجہ نہیں دی گئی اور جو عرصہ ہے اس میں مرمت اور بحالی کا کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ سبزی منڈی کے قریب جو واقع فلائی اوور ہے یہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ لیکن اب 5 سال بعد ایل ڈی اے کو پھر داتا نگر پل کا خیال آ گیا ہے۔ 2017 میں نیسپا کی طرف سے اس پل کو ناقابل استعمال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہر مالی سال میں اس منصوبے کے لیے فنڈز تو رکھے گئے لیکن اس کی مرمت پر یہ فنڈز خرچ نہ ہو سکے۔ تاہم اب رواں مالی سال میں ایل ڈی اے نے اس مردہ فائل کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور داتا نگر فلائی اوور سمیت ملحقہ آبادیوں کے لیے پلان بنا لیا گیا ہے۔ شمالی لاہور داتا نگر فلائی اوور اور ملحقہ آبادیوں کے لیے 90 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا ہے، جس میں داتا نگر پل کے 0.58 کلومیٹر طویل حصے کی بحالی کا کام کیا جائے گا۔ پل کو گرانے کی بجائے نئے ڈیک مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت داتا نگر فلائی اوور پر کارپیٹنگ کا کام بھی کیا جائے گا، جس سے روزانہ 1 لاکھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو فائدہ ملے گا۔ موجودہ صورتحال میں پل کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس داتا نگر پل کے نیچے بیم
اور گرڈرز میں شگاف پڑ چکے ہیں. پل کے نیچے غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے گائے اور بھینسوں کے باڑے بن چکے ہیں، جبکہ قبضہ مافیا اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ انہوں نے پل کے نیچے پختہ تعمیرات کر کے دکانیں بھی تعمیر کر لی ہیں. ناقابل استعمال قرار دینے کے باوجود اس پل سے جو ٹریفک کا گزرنا ہے وہ اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہے. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ داتا نگر فلائی اوور یہ 33 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا اور پل کا باقاعدہ افتتاح 1990 میں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. تو خبر یہ ہے شہر کے 45 شاہراہوں کی تعمیر اور بحالی ٹف ٹائلز کے لیے 48 کروڑ 80 لاکھ روپے کی سمری منظور. داتا گنج بخش کی 4 سڑکوں پر 5 کروڑ سے زائد جو ہے تعمیر شروع ہوگی. راوی اور شالیمار زون کی 4 سڑکوں کو 4 کروڑ سے لش پش کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے. ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر لاہور رافع حیدر نے سمری منظور کر لی ہے. رافع حیدر نے سمری منظور کر لی ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. آج بالکل شہر کی سڑکوں کی تزئین و آرائش کا معاملہ تھا جو کہ اس وقت زرعی انتظامیہ اور کارپوریشن کے سپرد کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے شہر کی 45 شاہراہوں کی تعمیر و بحالی، فٹ پاتھ کے رنگ و روگن اور ٹیپ ٹائلز کے لیے 48 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہے ان کی سمری منظور کر لی گئی ہے. سمری کے حوالے سے چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید نے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی نشاندہی کی، جس پر ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل نے اس سمری کو منظوری دی اور اس حوالے سے ہیڈ کوارٹر ایم سی ایل کی 15 شاہراہوں پر 17 کروڑ سے تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا ہے، جبکہ داتا گنج زون کی 4 سڑکوں پر 5 کروڑ، راوی اور شالیمار زون کی 4 سڑکوں پر 4 کروڑ، سمن آباد اور عزیز بٹی زون کی 8 روڈز کے لیے 10 کروڑ کی تعمیر و بحالی کی منظوری دی گئی ہے. اسی طرح علامہ اقبال زون نیشتر زون کی 14 سڑکوں کے لیے 11 کروڑ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. جیٹن روڈ، علامہ اقبال روڈ، لارنس روڈ، دھرم پورہ ریس کورس، ڈیوس روڈ، ڈیورنٹ روڈ، ایمپریس روڈ کی تعمیر و بحالی کے کاموں میں جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ کی تعمیر و بحالی بھی شروع کر دی گئی ہے. مزنگ، زہولہ روڈ، مین بازار، انارکلی، فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، کوئنس روڈ، لٹن روڈ، مزنگ اور ٹھوکر نیاز بیگ روڈ کی سڑکیں فٹ پاتھ تعمیر و بحالی کے کام میں شامل ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ماہ جنوری کے آخری ہفتے تک کاموں کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ. میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. میٹرک کا امتحان 1 مارچ 2024 سے لیا جائے گا، جبکہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان 15 اپریل 2024 سے شروع ہوگا. تمام تعلیمی بورڈز کے تحت یکمشت تاریخوں پر امتحان لیا جائے گا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف، بتائیے گا امتحانات ختم کس تاریخ پر ہوں گے؟ جی بالکل، اس کی اپنی ڈیٹ شیٹ تو ابھی جاری ہونا باقی ہے، لیکن امتحانات کب شروع ہوں گے اس حوالے سے شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. میٹرک کا امتحان جو ہے وہ 1 مارچ 2024 سے شروع ہوگا، جبکہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان جو ہے وہ 15 اپریل 2024 سے شروع ہوگا. لاہور سمیت تمام جو تعلیمی بورڈ ہیں اسی تاریخ پر امتحانات کا آغاز کریں گے، اور ابھی جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے فارم جو ہے دیے جا رہے ہیں. تاہم امتحانات کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے کہ 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے جو امتحانات کا آغاز جو ہے ان کی تاریخوں کا اعلان ہوا، جس کے مطابق 1 مارچ 2024 سے میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات جو ہیں وہ 15 اپریل سے شروع ہوں گے. تمام تعلیمی بورڈ جو ہیں ایک ساتھ ہی جو ہے امتحانات کا آغاز کریں گے، اور اس حوالے سے تمام اسکولوں اور کالجز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، اور اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ امتحانات کے حوالے سے طلباء کی تیاری شروع کروا دی جائے. جی ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ. 10 ماہ گزر گئے مگر ڈرگ کورٹ میں جج کی تعیناتی نہ ہو سکی. ڈرگ کورٹ میں جعلی ادویات سمیت دیگر اہم مقدمات زیر التوا ہیں. جج کی تعیناتی نہ ہونے سے سائلین اور وکلاء پریشان ہیں. ڈرگ کورٹ میں قصور، ننکانہ، شیخوپورہ اور اوکاڑا کے مقدمات زیر التوا ہیں. 10 ماہ گزر گئے مگر ڈرگ کورٹ میں جج کی تعیناتی نہ ہو سکی. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نعمان نور سے. جی نعمان، آگاہ کیجیے گا. جی 10 ماہ گزر گئے ہیں مگر لاہور ڈویژن کی اکلوتی ڈرگ کورٹ میں جج کی تعیناتی نہ ہو سکی ہے. اس حوالے سے ڈرگ کورٹ میں جعلی ادویات میں دیگر اہم مقدمات زیر التوا ہیں. رانا نوید کے تبادلے کے بعد تاحال کوئی جج مقرر نہیں ہو سکا، جبکہ چیئرمین ڈرگ کورٹ رانا نوید نے 2 سال مکمل ہونے پر 11 فروری 2023 کو چارج چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد تاحال ڈرگ کورٹ میں کوئی جج جو ہے وہ مقرر نہیں کیا جا سکا. ڈرگ کورٹ میں جج کی تعیناتی نہ ہونے سے سائلین اور وکلاء پریشان ہیں. اس حوالے سے وکلاء نے کہا کہ ڈرگ کورٹ میں فوری طور پر جج مقرر
किया जाए, जबकि कई माह से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। साइरीन का ये कहना है और साइरीन का मजीद कहना है कि लाहौर डिवीजन जिसमें कसूर, ननकाना, शेखपुर और रुकाड़ा के मुकदमात जो हैं वो लाहौर की इकलौती ड्रग कोर्ट है जहां पर इन मुकदमात की समाअत होती है, लेकिन इतने माह गुजरने के बावजूद जो है ताहाल यहाँ पर कोई जज मुकर्रर नहीं हो सका, जिसके बायस ड्रग कोर्ट के जो मुकदमात हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट जो है वो इन मुकदमात की बतौर ड्यूटी जज समाअत कर रहे हैं और साइलिन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमान। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। आपको बताएं कि बेंच के अरकान में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम समेत दीगर शामिल हैं, जबकि बेंच पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तो खबर यह है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा और बेंच के अरकान में जस्टिस शम्स महमूद और जस्टिस शाहिद करीम समेत दीगर शामिल हैं। तो खबर ये है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की जाली फेसबुक आईडी बनाने का केस, सेशन अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने गवाहान को बयानात पर जरा के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज भट्टी केस पर समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। नुमान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की जाली फेसबुक आईडी बनाने का ये केस है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, सेशन अदालत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की जाली फेसबुक आईडी बनाने के केस का तफसीली गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जबकि अदालत ने मुल्ज़म को वकील को आइंदा पेश करने का आखिरी मौका दे दिया है। जबकि अदालत ने फैसले में ये तहरीर किया कि पिछली 4 समाअतों के बावजूद जो है मुल्ज़म अपने वकील को पेश नहीं कर रहा, जो कि जानबूझकर केस को इल्तवा का शिकार रखने की कोशिश कर रहा है। जबकि मुकदमा के गवाहान 1 से 5 गवाहों को जो है वो आइंदा समाअत पर दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है, जबकि मुल्ज़म रोशन मीर अपने वकील को आइंदा पेश करे वरना जिरा का हक खत्म कर दिया जाएगा। तहरीरी फैसले में ये भी लिखा गया कि मुल्ज़म ने अगर आइंदा समाअत पर अपना जो वकील है वो पेश ना किया तो प्रोसिक्यूशन और स्टेट काउंसिल से इस गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल करके केस को आगे चलाया जाएगा। इस हवाले से एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज भट्टी ने केस पर समाअत की, जबकि मुल्ज़म के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जबकि मुकदमे में ये इल्जामात लगाए गए हैं कि मुल्ज़म ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाली फेसबुक आईडी बनाई। मुल्ज़म ने जजेस, वकील और मुतअद्दिद अफसरान को ब्लैकमेल किया। मुल्ज़म ने खवातीन को नौकरियों का झांसा देकर लाखों रुपए भी हथियाए। इस हवाले से अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़म को वकील पेश करने का हुक्म दिया है और समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में मनशियात के मुकदमे का चालान मुकम्मल करके पेश ना करने का केस है। अदालत ने IG पंजाब को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने चालान जमा ना करवाने का वतीरा बना लिया है और जस्टिस शहबाज रिजवी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा, अदालत ने IG पंजाब को तलब कर लिया है, मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में मुंशियात के मुकदमे का चालान मुकम्मल करके पेश न करने पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने IG पंजाब को तलब कर लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क दिए कि पुलिस ने चालान बरवक्त जमा न करवाने अपना वतीरा बना लिया है और दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल में है। पुलिस ने अभी तक मुकदमे का चालान पेश नहीं किया और चालान पेश न करने पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होगी। तो इस मामले पर अदालत मुतलका थानों को चालान पेश करने के अहकाम जारी करे। जी ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से परवेज़ इलाही को अदालत में पेश ना किया गया। जिले कचहरी अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को शोकास नोटिस जारी कर दिया, जबकि समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, बताइएगा कि परवेज़ इलाही को अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया? जी बिल्कुल, जिला कचहरी में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही को पेश करने का ये मामला है, जिसमें अदालत में जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया गया। अदालत में जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से ये बताया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज है और जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने उनको सफ़र करने से मना किया है, इसलिए इनको जो है वो आज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जिसके बाद अदालत ने जो है वो जेल सुप्रिंटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी किया है और इस हवाले से 21 दिसंबर तक केस की समाअत को मुलतवी किया है। तो चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज होने की वजह से आज उनको अदालत में पेश नहीं किया गया और अदालत की जानिब से शो कॉज भी जारी किया गया है। जबकि पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये केस है, जिसमें परवेज़ इलाही को आज 14 रोज के जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत के रूबरू पेश किया जाना था। जी ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार, लाखों मरीज इलाज के लिए ख्वार। डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा कार वसी हो गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ओपीडीज़ बंद है। सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज़ 18वें रोज़ भी बंद है। मरीजों का हुकूमत से डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म करवाने का मुतालिबा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा हुकूमत की जानिब से कब डॉक्टर्स के मुतालबात जो हैं माने जाएंगे, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? तो खबर यह है कि यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार है और लाखों मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा कार भी वसी होता जा रहा है और लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ओपीडीज़ बंद कर दी गई हैं डॉक्टर्स की जानिब से और सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज़ 18वें रोज़ भी बंद हैं। मरीजों का हुकूमत से डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म करवाने का ये मुतालिबा भी है। तो इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार है और लाखों मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा कार वसी होता जा रहा है और लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ओपीडीज़ भी बंद हैं। सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज़ 18वें रोज़ भी बंद हैं। मरीजों का हुकूमत से डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म करवाने का ये मुतालिबा भी सामने आया है और डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा कार भी वसी होता जा रहा है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ओपीडीज़ भी बंद है। लाखों मरीज इलाज के लिए ख्वार हो रहे हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार है, लाखों मरीज इलाज के लिए ख्वार होकर रह गए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा कार वसी होता जा रहा है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ओपीडीज़ बंद है। सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज़ 18वें रोज़ भी बंद है। मरीजों का हुकूमत से डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म करवाने का मुतालबा। महकमा औकाफ ने शाह कमाल के इलाके में 50 दुकानों के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा है। 2 कनाल अराजी पर दुकानें और फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। मंसूबे पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जी, महकमा औकाफ ने नई कमर्शियल पॉलिसी के तहत लाहौर में अपने पहले मंसूबे का जो है वो आगाज़ कर दिया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने शाह कमाल का जो इलाका है यहाँ पर 50 दुकानों का जो है मंसूबे का संगे बुनियाद रखे। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मज़ीद कौन कौन से मंसूबे जो है वो शुरू किए जा रहे हैं और इस पर कितनी लागत आएगी और कब तक ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी सर। ये 5 करोड़ की लागत से ये मंसूबा जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा और इसमें 50 दुकानों पर मुश्तमिल ये मार्केट बनेंगी और इससे मैं समझता हूँ कि वकाफ का रेवेन्यू जनरेट होगा और इसके साथ मुकामी आबादी को कारोबार के बेहतर मौके मुयसर आएंगे। वकाफ जो है ये सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिव है, हमें गवर्नमेंट से बजट नहीं मिलता, हम खुद ही एक अपना बजट खुद अपनी इस तरह की जो इमलाक हैं उस पोटेंशियल को बेहतर यूज़ करके तरतीब देते हैं और मैं समझता हूँ कि खुद इन्हिसारी के एतबार से जिसकी इस वक्त हमारी रियासत को, इस कौम और मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए औकाफ एक बेहतरीन मॉडल है कि जो अपनी गवर्नमेंट से नहीं बल्कि अपने वसाइल से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। जी, आपने उनकी बात सुनी, ये पहला मंसूबा है जो शुरू किया गया और इसके बाद पहले फेज़ में जो है दुकानें हैं, दूसरे फेज़ में फ्लैट्स बनाए जाएंगे। 2 कनाल जो है ये अराजी है जहाँ पर महकमा औकाफ ने अपने जो है वो नई पॉलिसी के तहत 50 दुकानों का जो है वो संग बुनियाद रखा है। ये मंसूबे का आगाज़ जो है वो। बात करते हैं महंगाई की कि महंगाई माफिया बेलगाम है। सब्जी, फल और मुर्गी के मुंह मांगे दाम। मुर्गी का गोश्त 18 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 463 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 2 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत
344 रुपए हो गई है, जबकि प्याज 220, लहसुन और अदरक 850 रुपए किलो में दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में शायद ज़रूरिया की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी का रुझान जारी है और अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें इस वक्त इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। आज इसकी कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया और 18 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 463 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। इसी तरह अंडे जब से सर्दियों का आगाज़ हुआ इसकी कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 रुपये इजाफा हो रहा है। आज भी 2 रुपये मज़ीद इजाफा हुआ है और इस वक्त 344 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 350 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्जियों की सूरत हाल भी इसी किस्म की। एक सारफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल चिकन और ख़ास तौर पे सब्जियां वगैरह जब ख़रीदने आते हैं तो क्या सूरत हाल नज़र आती है? सबसे पहले तो सोचना पड़ता है कि लें कि ना लें, फिर उसके बाद ये होता है कि भी बार्गेनिंग बहुत मुश्किल है, नहीं मानते। और जो महंगाई है इतनी ऊपर हो चुकी हुई है कि नॉर्मल जो बंदा है वो कैसे खाएगा। मैंने खुद देखा हुआ है, 1 से 2 पीस उठाएंगे और वो भी सोच रहे थे कि ये कितने का है, बार्गेनिंग उसके ऊपर भी हो रही है। यकीनन तमाम सार्फिन इसी आस पर हैं कि किसी तरह महंगाई कम हो सके, क्योंकि आज भी जो सब्जियों की सूरत हाल है, प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में कम अज़ कम इस वक्त जो कीमत है 200 रुपये और बाज़ जगह पर 220 रुपये फ़ी किलो तक प्याज बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। तो मार्केट में जो मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जा रही है उसमें यही लग रहा है कि गुज़श्ता चंद माह से जो एक महंगाई की लहर चल रही है वो मुसलसल मार्केट में मौजूद है और उसका तदारक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया जाहिद। यहाँ पे आपको बताएं कि बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 40 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा कि क्या डॉलर मज़ीद सस्ता होगा? जी बिल्कुल, ये मुसलसल तीसरा कारोबारी हफ्ता है जिसमें डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर कमी देखी जा रही है। आज भी बैंकारी औकात के आगाज पर इसी किस्म की सूरत हाल देखी गई और अब तक तकरीबन 46 पैसे डॉलर सस्ता हो चुका और इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी यही सूरत हाल और ओपन मार्केट में 286 रुपये पर डॉलर रेट देखा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता तीसरा हफ्ता है जिसमें रुपए को मुसलसल इस्तेकाम मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त बेहतर ख्याल किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ IMF से जो डील हुई है उसकी भी हतमी मंजूरी जनवरी में होने का कभी इम्कान पाया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत खत्म होती नजर आ रही है और रुपए को इस्तेकाम मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दिया उज़्मा लाहौर शहरियों के मसाइल में बेहतरी के लिए कोशा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स, मेट्रोपॉलिटन अफसरान और दीगर अमला की निगरानी में काम जारी है। मुरम्मत सड़कों पर 12,000 मुरब्बा फीट पैच वर्क किया जा चुका है, जबकि ब्लॉक चौक टाउनशिप में 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा कितने फ़ीसद काम मुकम्मल हो गए? आज बिल्कुल शहर की तजीज़ और रईस का मामला है। बल्दिया लाहौर शहरी मसाइल में बेहतरी के लिए कोशा है। इस वाले से ट्रैफिक मसाइल में कमी व आमदोरफ्त को बेहतर करने के लिए अहम शहरों की मरम्मत का काम शुरू है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCR राफिया हैदर के हिदायत पर अहम शहरों पर पैचवर्क का काम जारी है। शहर की 8 अहम शहरों पर मरम्मत व बेहतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विंग जो है काम कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन अफसरान और दीगर अमला की निगरानी में काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि अब तक काबिल मरम्मत सड़कों पर 12,000 स्क्वायर फीट पैचवर्क किया जा चुका है, जबकि ब्लॉक चौक टाउनशिप में 40% काम मुकम्मल किया गया है, जबकि रिजान रोड जोहर टाउन में 80%, पीर गाजी रोड इशरा पर 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह इम्तियाज रोड गोरे पर 70% और शाहजहां रोड गड़ी शाह पर 40% काम मुकम्मल किया गया है। मेन सर्कल रोड लाई अड्डा पर पैचवर्क की सूरत में 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ सड़कें जहाँ पे काम किए जा रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और तमाम तनख्वाह स्टाफ की सड़कों को मरम्मत और बहाली की काम की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है। काम के म्यार को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। क्वालिटी और म्यार में कमी की सूरत में मुतल्लिका अफसरान की खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि अहम शहरों की मरम्मत से ट्रैफिक मसाइल में खातिर खास बेहतरी आएगी। एडमिनिस्ट्रेटर MCR राफिया हैदर का कहना है कि शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी और ईंधन की बचत इस मामले पर होगी और जो सड़कों पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो भी कम होगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।
गवर्नर पंजाब से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज के तलबा और असातिज़ा के वफ्द की मुलाकात। तलबा को मेरिट पर लैपटॉप्स देने के लिए पंजाब हुकूमत को मुतवज्जा कराने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि तालीम के साथ तरबियत का पहलू बहुत अहम है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा कि मुलाकात में मजीद क्या मौजूद ज़ेर बहस आए हैं? गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज और लोरालाई के तलबा साहबा के वफ्द ने फारूक काकड़ की सरबराही में गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। वफ्द में सुबह बलोचिस्तान के 31 अतला के बच्चे शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने बलोचिस्तान से मुतालाती दौरे पर आए तलबा को गवर्नर हाउस में खुश आमदीद कहा है। इस वक्त पर गवर्नर ने कहा कि तालीम के साथ तरबियत का पहलू बहुत अहम है। जिंदगी के मुस्बत पहलू को देखें और शुक्रगुजार हैं। हम अपने वतन और जो मिट्टी है उसका हक अदा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में तकब्बर और अदर का कहा जा गया है और सनाई बातों पर यकीन न करने के लिए कहा गया है। एक तालीम याफ्ता शख्स हर चीज को अपने ज़हन की कसौटी पर परखता है। उन्होंने कहा कि 2018 से पहले लैपटॉप स्कीम में बलूचिस्तान के तलबा का ना सिर्फ हिस्सा रखा गया बल्कि इनमें रिकॉर्ड लैपटॉप तकसीम किए गए। गवर्नर ने कहा कि लैपटॉप तकसीम जैसी शफाफ अवामी फराज स्कीम 2018 के बाद बंद कर दी गई। इस मौके पर तलबा की तरफ से लैपटॉप जो लैपटॉप स्कीम ताज़े पर गवर्नर पंजाब ने बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज और लोरालाई के तलबा को मेरिट पर लैपटॉप देने के लिए पंजाब हुकूमत को मुतवज्जो कराने की यकीन दहानी भी कराई। गवर्नर ने कहा कि 2013 और 18 के दरमियान सुबह बलूचिस्तान की तरक्की के धारे में लाने के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। गवर्नर ने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा के लिए पंजाब की जामियात और जो मेडिकल कॉलेज में खसूसी कोटा रखा गया है। मुल्क की तरक्की के लिए फलाह व बहबूद और पॉलिसी का तसलसल बहुत अहम है। फारूक काकड़ ने तलीमी दौरे के मकासद बयान किए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई के सैकड़ों डॉक्टर्स, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, आर्मी समेत मुख्तलिफ शोबों के नुमाया मकामात और खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। फारूक काकड़ ने मजीद कहा कि पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की तरह शफकत दिखाई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के रेजिडेंट कॉलेज लोरालाई में सेंट्रल हैंडलिंग सिस्टम लगवाया है। फारूक काकड़ ने कहा कि इसी दौर में कॉलेज को 1 से 5 करोड़ ग्रांट भी वफाकी हुकूमत की तरफ से बसें दी गई हैं और फारूक काकड़ ने गवर्नर हाउस मदू करने पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया भी। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। अगले तालीमी साल के लिए मुफ्त किताबें प्रिंट होंगी या नहीं, महकमा स्कूल एजुकेशन नई किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से फैसला ना कर सका। महकमा तालीम की जानिब से ताहाल सरकारी स्कूलों से मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी के लिए बच्चों का डाटा इकट्ठा न किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा महकमा तालीम की जानिब से क्यों इस मामले पर सुस्ती का मुजाहिरा किया जा रहा है? जी, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अगले तालीमी साल के लिए मुफ्त जो निसाबी कुतुब है उनकी प्रिंटिंग है या नहीं पर फैसला हर सब जो है महकमा स्कूल तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऐसा तलब कितने बच्चे किताबें प्रिंट करवाए। हाल इस हवाले डाटा जमा ही नहीं किया तरफ का 3 माह रहे तो ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों और वापडा की इंजीनियर्स एसोसिएशन का एहतजाज भी काम न आया। वफाकी हुकूमत के हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई ख़त्म कर दी गई है। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया है। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी ऑफिसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई ख़त्म कर दी गई है, ऐसी हिदायत क्यों गई थी? जी बिल्कुल, ये लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों और वापडा के इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतअद्दिद बार इस फैसले पर एहतजाज किए गए, मगर ये एहतजाज भी जो है वो काम नहीं आए। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अब जो है वो महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म कर दी गई है। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस जो है वो अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया है। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी ऑफिसर को जो है वह मुफ्त यूनिट नहीं मिलेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोनेटाइजेशन के तहत ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में जो है वो फ्री यूनिट्स के पैसे जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। इनमें ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में 15,858 रुपए जो है वो
बिजली अलाउंस इनकी तनख्वाहों में शामिल किया गया है, जबकि ग्रेड 18 के अफसरान की तनख्वाह में 21,996 रुपये, ग्रेड 19 के अफसरान की तनख्वाह में जो है वो 37,594 रुपये शामिल किए जा रहे हैं, जबकि ग्रेड 21 के ऑफिसर की तनख्वाहों में जो है वो 46,992 रुपये बिजली अलाउंस की मद में जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। मरासले में तमाम अफसरान को कहा गया है कि तमाम अफसरान अब अपना बिजली का बिल जो है वो खुद अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत के फैसले पर जो अफसरान हैं उनमें मायूसी फैल गई है, जबकि इंजीनियर एसोसिएशन भी जो है वो वफाकी हुकूमत को कायल इस मामले पर नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक फ्री यूनिट्स के मामले पर लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनी की एसोसिएशन ने अदालतों से जो है रुजू करने का फैसला किया गया है। अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स जो है इनकी मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे। जब इन्हें मुलाजमत फराहम की गई थी तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल था, ये शख्स शामिल थी, और अब जो है वो हुकूमत इसको नहीं निकाल सकती। लेस्को अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स नहीं मिलते थे, इसके वाजिबात जो है वो इनकी तनख्वाहों का हिस्सा था जो उनके जो है वो मुतलका इदारे अदा करते थे। तो अब जो है वो इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से इस मामले पर जो है वो अदालतों से रुजू करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया।